Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Are you listening properly, Ayushi Kumari? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. ओके, तो आज मैं ठीक है? ओके, वेरी गुड। सारे बच्चे वीडियो प्ले करो, प्ले योर वीडियो ऑल ऑफ यू, कम ऑन, वीडियो प्ले करो। जब मैंने अपना वीडियो प्ले किया तो तुम लोग क्यों नहीं करोगे? वीडियो प्ले करो। ठीक है। वेरी गुड। तो मैं किसी एक बच्चे को अनम्यूट करूंगा ताकि हम लोग कन्वर्सेशन करें। ओके, इशिका अनम्यूट हो जाओ। इशिका कुमारी, इशिका कुमारी। ओके, आर यू लिसनिंग प्रॉपर्ली? Yes, sir. बताओ, आज न्यू चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। Yes, sir. Today we will start new chapter. Okay, today we are going to begin new chapter. What is the name of that new chapter? Cleanliness and hygiene. Cleanliness and hygiene. Okay, very good. Cleanliness and hygiene. Just wait for 1 minute. Let me upload the video. Just now I have checked into the YouTube. Just 1 minute. Just 1 minute, then I will open the book. Okay, now let me open book on this.
Let me open book. Chapter. Which chapter you said just now? Ishika Kumari. Which chapter will begin today? Pragati Khitan unmute. Pragati Khitan. Yes, sir. Which chapter will begin today? Sir, 12. Cleanliness and hygiene. Yes, sir. Where is chapter 12? Okay, all of you are able to see this book on the screen. What I have opened just now. Are you able to see the book? Yes, sir. Okay, let us begin. Cleanliness and hygiene. First of all, in this page we have got 4 pictures. One boy is washing something, another boy is brushing, and this girl is washing, I think, her face, and this girl is combing. So these are the good habits of hygiene and cleanliness. These are the good habits. Every day when we get up in the morning, we do these things, don't we? ये सारा चीज हम लोग करते हैं जब सुबह उठते हैं तो. We will learn about. Here we have got 4 points. यहाँ पर 4 main important points. Personal hygiene and healthy habits. Diseases due to lack of personal hygiene. Garbage and its types. Management of garbage. तो ये बुक साफ सुथरा कैसे रहना है और उसका क्या फायदा है उस पर आधारित है. ये बोला इस चैप्टर को हम लोग अच्छी तरह से. ओके प्रगति खेतान, आर यू लिसनिंग प्रॉपर्ली? Yes, sir. वेरी गुड. Yes, sir. तो यहाँ सबसे पहले एक एक्टिविटी ये स्टोरी शुरुआत होता है. टिक द पिक्चर शोज हेल्दी हैबिट्स. इस पिक्चर में हम लोग वैसे पिक्चर को टिक करेंगे जिसमें हेल्दी हैबिट्स है. तो कौन कौन सा पिक्चर हेल्दी हैबिट्स को इंक्लूड करता है? पिक्चर नंबर 2 जिसमें ये बच्चा खेल रहा है, और पिक्चर नंबर 1 ये वाला, और ये दोनों में क्रॉस होगा. ये हेल्दी हैबिट, ये आंटी हुआ जहाँ था. ठीक है. Yes, sir. अब हम लोग यहाँ शुरुआत. First of all, we have been given one fact over here. Let us study and try to understand what is written. Illness can be prevented by having healthy habits. बीमारी को रोका जा सकता है having healthy habits. अच्छी आदतों को रखने. मतलब अगर तुम्हारे पास या तुमको अच्छी आदत है, मतलब साफ सुथरा रहने का, सब कुछ अच्छी तरह से करने का, तो बीमारी ऐसे ही रुक जाएगा ऑटोमेटिकली. बहुत सारा बीमारी गंदगी से आता है कि नहीं? Yes, sir. Health is achieved by cleanliness and cleanliness prevents disease. अच्छा सेहत जो है साफ सुथरे रहने से आता है, और साफ सुथरा रहने से हम लोग बीमारी से दूर रहते हैं. Hygiene is defined as the science and practice of maintaining good health.
hygiene is defined as, here we have got the definition of hygiene. ये hygiene का definition. If someone asks you what is the definition of hygiene, say you may write from here to here. Hygiene is the science and practice of maintaining good health. ये hygiene का definition. Sir, your voice is not coming clearly. My voice is not coming clearly. Are you listening properly now? Yes, sir. Now it was coming. No, it is coming. So now listen. One Bluetooth I have kept in my hand, so that you can listen the audio. There will be no confusion. Then I will say. Understood? Yes. Okay. So hygiene is defined as the science and practice of maintaining good health. So ये hygiene का definition. It requires taking care of one's own body, personal hygiene, and of the surroundings, social hygiene. तो हाइजीन का मतलब क्या है? हाइजीन का मतलब ये हो गया अपने आप को साफ करना और अपने आसपास की जगह को भी साफ करना. अगर रूम में हो तो रूम साफ होना चाहिए, घर में हो तो घर साफ होना चाहिए, क्लास में बैठे हो तो क्लास में गंदा मत करो. तुम लोग चॉकलेट खाते हो और रहकर रोटी करते हो कि? फिर उसके बाद पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स. पर्सनल हाइजीन में क्या क्या इंक्लूड होता है? मतलब पर्सनल हाइजीन साफ सुथरा रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट क्लीनलीनेस. सबसे पहले साफ सुथरा. क्लीनलीनेस मतलब साफ सुथरा. सही प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड का क्लीनलीनेस. क्लीनलीनेस नहीं बोल, क्लीनलीनेस. रेस्ट एंड स्लीप. टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी का नींद पूरा नहीं होता है तो शरीर उसका चेहरा देखने में थोड़ा सा लगता है और वो बीमार लगता है. ऐसा होता है कि? Yes, sir. yes. तुम रिप्लाई क्या करो तभी पता चले मेरी आवाज क्या है, वरना हम बोलते रहेंगे और बैठी रहोगे तो लगेगा. फिजिकल एक्सरसाइज. रोज एक्सरसाइज भी करना चाहिए. कितने बच्चे लोग एक्सरसाइज नहीं करते? इससे क्या कोई भी नहीं. हम सुबह यहाँ ड्रेस उतरने के बाद एक्सरसाइज करते हैं पहले. आज भी हम किए. चंद्रशेखर सर और हम दोनों साथ ये शारदा पाठशाला में दौड़ गए. उसके बाद स्कूल आए. हेल्दी हैबिट्स. और हैबिट्स जितना भी हो वो हेल्दी होना चाहिए. हेल्दी हैबिट्स का क्या मतलब? हेल्दी हैबिट्स का मतलब साफ सुथरा रहना है, किसी चीज से गंदा नहीं होने देना है. खाना भी जो खाना है वो साफ सुथरा खाना है, गंदा खाना नहीं. अब क्लीनलीनेस करा. क्लीनलीनेस इज द मोस्ट पार्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन. यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखना किताब वाले भूल गए. क्लीनलीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन. यहाँ पर तुम लोग इंपॉर्टेंट लिख लेना, कैरेक्ट देकर इंपॉर्टेंट लिख. ठीक है. क्लीनलीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन. क्लीनलीनेस जो है साफ सुथरा रहना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है. इसको करना हर हाल में जरूरी है. Our hands and skin must be cleaned regularly. हमारे हाथ और स्किन को रोज साफ करना चाहिए. Every day our hands touch a variety of things like furniture, books, coins, chairs, animals, and tools. All these objects carry germs, which, when touched by our hands or fingers, is transferred over to other parts of the body or into the mouth through food. Therefore, we should keep every part of the body clean. हमारे हाथ को रोज धोना चाहिए, बल्कि दिन भर में 4-5 बार धोना चाहिए. पहले खाने के बाद भी, क्योंकि हम लोग दिन भर में बहुत सारी चीज को टच करते हैं, जैसे फर्नीचर, बुक से सिक्का, पैंट, शर्ट, घर का कोई सामान, बाहर का कुछ भी. सब में छोटा छोटा और बहुत ही छोटा जर्म होता है. खुले आंख से दिखाई नहीं देता, which can't be seen with our naked eyes. जिसको खुले आंख से नहीं देख सकते, बहुत ही छोटा होता है. तो वो सब हाथ में टच होता है. या तो हाथ धो लो, या नहीं तो आजकल सैनिटाइजर निकला है, सैनिटाइजर लगा लो. सैनिटाइजर लगाता है नहीं तो हाथ का साफ रहना बहुत जरूरी है. अब केयर ऑफ हैंड्स. अब देखो यहाँ पर हाथ में कितने सारा जर्म्स आ जाता है जब हम किसी चीज को टच करते हैं. यहाँ पिक्चर में बड़ा करके दिखाया गया है तो दिखा देते हैं. जर्म्स सब ऐसे ही होता है. ये जितना कार्टून है, ये कार्टून नहीं है, ये जर्म्स है, तुम्हारे हाथ में लगा होता है. मतलब हर एक इंसान
देख रहे हो, ये जर्म्स हाथ में चिपका Yes. रहता है किसी न किसी बहाने से। ये देखो, Yes, ये sir. रस्सी बांध कर मिट्टी ठोक रहा है, कोई जर्म सीढ़ी से चढ़ रहा है, कोई खुशी मना रहा है, कोई हाथ में, कोई यहाँ है, कोई वहां है। पिक्चर के जरिए दिखाने का ये मतलब है कि हाथ में कहीं ना कहीं जर्म्स रहता है। जैसे हम अभी अपना ये लैपटॉप छू, तो लैपटॉप में भी जर्म्स है, हाथ में भी जर्म्स है। तो खाना जब Yes, खाने sir. जाएंगे हम लोग कुछ भी, तो उसको प्रॉपरली धो लेंगे, फिर उसके बाद खाएंगे। अब केयर ऑफ हैंड, तो हाथ का सुरक्षा हम लोग कैसे करेंगे वो सुन लो। ऑलवेज वॉश हैंड्स विद सोप आफ्टर विजिटिंग द टॉयलेट बिफोर एंड आफ्टर हैविंग फूड। हमेशा हाथ को टॉयलेट जाने के बाद जरूर धोना चाहिए। कितने बच्चे लोग यहाँ क्लास स्कूल में होते आते हैं, बाथरूम जाते हैं और ऐसे ही दौड़ जाते हैं, वो अपना हाथ नहीं, हाथ को जरूर धोना, और खाना खाने से पहले और बाद में जरूर धोना। वॉश योर हैंड्स आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड और व्हेन यू टच एनी डर्टी ऑब्जेक्ट्स। और अपने हाथ को धोना है साफ सुथरे से, अगर बाहर खेलने जाते हैं या किसी भी चीज को टच किया है या खेलने के आने के बाद। क्लीन योर हैंड्स आफ्टर प्लेइंग विद योर पेट एनिमल। और अगर किसी के घर में कोई पालतू जानवर है, जैसे तोता, बिल्ली, चूहा, पता नहीं क्या क्या होता है, घर, तो वो सबको अगर टच किए हो तो उसको भी धो लेना है। अब केयर ऑफ हेयर, Yes. केयर ऑफ हेयर, बाल का रक्षा करें। आवाज तो आ रही है ना साथ साथ? Yes, sir. वेरी गुड। ऑयल द हेयर एट लीस्ट ट्वाइस ए वीक, इट विल हेल्प इन प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन इन द। देखो इसमें लिखा हुआ है कि कम से कम सिर में हफ्ते में 2 बार तेल देना चाहिए। ये प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन जो है सर का, उसको मदद करता है। इट विल हेल्प इन प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन इन द हेड। सर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको सर्कुलेट करने में ये हेल्प करता है। तो सिर में तेल जरूर लगाना चाहिए। हम आज ही लगाएंगे सुबह नहाने धोने के बाद। ओके, तो वॉश द हेयर विद ए Yes. गुड क्वालिटी शैम्पू। और अगर सर में शैम्पू लगाते हो तो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। वो 1 रुपए वाला क्लिनिक प्लस और वो सब नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत ही केमिकल होता है जो बाल को पका देता है। बाल साइड से पक जाएगा। जैसे मेरा 1-2 पक गया है साइड में, ज्यादा शैम्पू लगा, तो अच्छे शैम्पू को यूज करें। कीप लाइस अवे बाय यूजिंग ए Yes. मेडिकेटेड शैम्पू। और अगर किसी के सर में जू है, यहाँ लाइस का मतलब जू, LIC, लाइसेंस जू, तो एक मेडिकेटेड शैम्पू आता है, उस शैम्पू को यूज करने से सिर से जू निकल जाएगा। वो मेडिकल में मिलता है। अगर किसी को है तो मेरे ख्याल से किसी को नहीं, ठीक है। कीप द हेयर नीट एंड टाइडी बाय कॉम्बिंग एंड ब्रशिंग प्रॉपर्ली। हमेशा अपने सर को जो साफ सुथरा रखना है, और सर में जो है कॉम, कंघी कंघी करना है, मतलब ताकि सर साफ सुथरा रहे, ठीक है। ओके इशिका कुमारी, Yes, sir. इशिका Yes, sir. आवाज आ रही है ना? Yes, sir. चलो ठीक है। अब हम लोग आते हैं केयर ऑफ योर माउथ एंड टीथ। मुंह को और दांत को कैसे सुरक्षित रखें। टीथ शुड बी ब्रश्ड एट ट्वाइस अ डे, अर्ली इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। यस, दांत को साफ करना चाहिए सुबह उठने के बाद, और रात में जब सोने जाते हैं तो ठीक उससे पहले। ये 2 बार तो हम करते हैं जरूर। रात में जब तक सोएंगे नहीं, ब्रश नहीं करेंगे तो नींद नहीं आएगी, तो ब्रश करके ही सोते हैं, और सुबह उठने के बाद भी तुरंत ब्रश करते हैं। ये 2 टाइम करना चाहिए। तुम लोग करते हैं 2 बार? ब्रश ट्वाइस इन अ डे, प्रगति खतान। Yes, sir. फ्लॉस द टीथ, और टीथ को फ्लॉस करना मतलब इस तरह से करके साफ करना। क्लीन टंग विद अ टंग क्लीनर, और जीभ को भी साफ करना है टंग क्लीनर से। विजिट अ डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ फॉर चेकअप। और हर 6 महीने पर, हर 6 महीने पर एक बार डेंटिस्ट को, मतलब दांत के डॉक्टर को जाकर चेकअप कराना है कि मेरा सब कुछ ठीक है या नहीं। तो क्या हर 6 महीने पर तुम लोग जाते हो अपना दांत को चेकअप कराने के लिए? मेरे ख्याल से कोई नहीं जाता होगा। कोई बात नहीं। केयर ऑफ नोज, नाक का भी सुरक्षित, नाक का रक्षा कैसे करें। नोज ब्रीदिंग इज हेल्दियर दैन माउथ। देखिए यहाँ एक लाइन कितना इंपॉर्टेंट लिखा हुआ कि नाक से सांस लेना
ज्यादा अच्छा है बनिस्बत मुंह के सांस लेने के। नाक से सांस लेना और मुंह से छोड़ना चाहिए। कितना लोग क्या करता है, मुंह से ही सांस लेता है, मुंह से ही छोड़ता है, तो ऐसा नहीं करना। इन केस ऑफ रनिंग और ब्लॉकिंग नोज, blow nose into a handkerchief or tissue, hold a handkerchief in front of the mouth and nose while speaking. जब कभी भी छींक आए तो रुमाल रखो और रुमाल से अपनी नाक वगैरह को साफ करते रहो, अगर सर्दी वगैरह है तो खास करके स्पेशली। केयर Yes, ऑफ sir. आईज एंड ईयर्स, अपने आंख और कान का रक्षा में। आई मस्ट बी क्लीन्ड एंड वॉश्ड विद क्लियर वाटर 2 to 3 times every day. अब दिन भर में कम से कम 3 बार 4 बार अपने आंख को धोना चाहिए, चेहरे को। जैसे कि हम सुबह से Yes. लगातार कंटिन्यूअसली लैपटॉप पर क्लास ले रहे हैं, हर एक क्लास के बाद हम जाकर के अपना चेहरा धो रहे हैं, क्योंकि लैपटॉप पर बार बार धोने से आंख में दर्द हो रहा है। Yes. Glaucoma and conjunctivitis are two common diseases of the eyes caused by dust and through contamination by hands and towels for preventing eye infections. अच्छा, यहाँ पर 2 बीमारी का नाम लिखा हुआ है जो धूल के कारण और तौलिए से सूखे कपड़े से आंख को रगड़ने से होता है। एक है ट्रैकोमा एंड कंजंक्टिविटीज, ये 2 बीमारी होता है। आर टू कॉमन डिजीजेस ऑफ द आईज कॉज्ड बाय डस्ट एंड थ्रू कंटामिनेशन बाय हैंड्स एंड टॉवल। और हाथ अगर गंदा हो गया, टॉवल गंदा है, उसी से आंख में पोंछ ली, इससे ऐसा होता है। फॉर प्रिवेंटिंग आई इन्फेक्शन, आंख में कोई इन्फेक्शन नहीं हो, आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए क्या करना चाहिए? 3 बात। नंबर 1, डू नॉट शेयर टॉवल विद अदर इवन इन द सेम फैमिली। अपने टॉवल को शेयर नहीं करना चाहिए, मतलब एक ही टॉवल में मम्मी भी मुंह पोंछ रही है, आपके पापा भी मुंह पोंछ रहे हैं, Yes. छोटा भाई भी मुंह पोंछ रहे हैं, दादी भी मुंह पोंछ रही है, तुम भी मुंह पोंछ रहे हो, मतलब पूरा घर भर, ऐसा नहीं है। अपना टॉवल अलग रखो। Do not apply काजल black suit as it may lead to eye infection. और काजल जो है वो नहीं लगाना चाहिए, उससे भी आंख में इन्फेक्शन होता है। वैसे कितने लोग लगाने से नहीं होता है, जिसको नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको होता है तो कम लगाना चाहिए। क्लीन द आईज बाय स्प्लैशिंग कोल्ड वाटर ऑन देम, और हमेशा आंख को साफ करते रहना चाहिए पानी आंख में डालकर। अब ये क्लास होने के बाद भी हम अपने आंख को साफ करेंगे, जो भी नहीं करते तो याद आ गया पानी से याद आ गया। ईयर्स शुड बी केप्ट क्लीन, कान भी साफ करना चाहिए। डू नॉट पुट एनी शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स इनटू द ईयर व्हिच मे इंजर द ईयर। कान में कभी भी कोई तिनका या कोई भी पॉइंटेड चीज अपने से डाल करके साफ नहीं करना चाहिए। वैसे करना तो अपने से, लेकिन ये तरीका गलत है। कितना लोग जो है वो छोटा छोटा तिनका डाल देते हैं, बाद में घुस गया तो दर्द से परेशान होता है कि नहीं? अरे कोई तो अनम्यूट हो, हम रिप्लाई, हम कोई बोलेंगे तो रिप्लाई करना। मुंतशा मुख्तार तुम हो गया, मुंतशा। Yes, sir. ठीक है, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. चलो ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सम अदर हेल्दी हैबिट्स, और भी कुछ हेल्दी हैबिट्स है जो अपनाना चाहिए। नंबर 1, ए डेली बाथ कीप्स द स्किन क्लीन एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स, रिमूव्स बॉडी ऑडर एंड कीप्स द स्वेट पोर्स ओपन। रोज जो है नहाना धोना चाहिए, उससे स्किन में जो छोटा छोटा छेद होता है, बहुत ही छोटा छोटा छेद होता है, वो बंद हो जाता है। नहाने धोने से वो खुला रहता है, स्वेट मतलब पसीना बाहर आता है, तो इंसान हेल्दी रहता है। अंडरगारमेंट्स, टॉवल एंड हैंडकरचीफ मस्ट बी वॉश्ड डेली। और अंडरगारमेंट्स मतलब अंदर जो बनियान पहनते हैं उसको भी साफ करना चाहिए, टॉवल साफ करना चाहिए, वगैरह वगैरह, हैंडकरचीफ रुमाल साफ होना चाहिए। ऑलवेज वियर क्लीन वॉश्ड एंड आयरन क्लोथ, और हमेशा साफ सुथरा और आयरन किया हुआ कपड़ा पहनना चाहिए। अगर आयरन नहीं किया हुआ है तो कम से कम साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। कीप योर नेल्स एंड हेयर ट्रिम्ड, बाल और नाखून छोटा होना चाहिए। बाल और नाखून छोटा होना चाहिए। जैसे देखो मेरा बाल छोटा है ना, छोटा, हम कभी बड़ा नहीं करते। तो मतलब गर्ल्स के लिए नहीं है ये, अब ये नहीं